Okay, today we are going to start with the structure of viruses and how they multiply and what their actual structure are. ठीक है. अच्छा, viruses जो है वो living organisms, living beings में नहीं आते. They are in between living and non-living. That means कि outside the protoplasm they act as a non-living particle. Okay, they act as a non-living particle. Viruses are the particles that include in between living and non-living bodies. Inside protoplasm, they act as living creature whereas outside protoplasm they act as simple non-living particle. Okay. Viruses are usually DNA containing or RNA containing structures. Means DNA viruses and RNA viruses. RNA may be single-stranded in them or double-stranded in their structure. Okay, now we study the general structure of viruses by taking the example of bacteriophage. Bacteriophage is a type of a virus that eats bacteria. Bacteria eating virus. Eating virus. Okay. It usually replicates itself inside the bacterial cell by infecting the bacterial cell and controlling its DNA, extracellular DNA, as well as normal free floating DNA to make its structure. And after replicating itself inside the cell, it what can I say? It comes out by rupturing the bacterial cell and spread all over in the environment. So after the structure, we will look at how it replicates. इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि replicate कैसे होगा. अच्छा जनाब, तो हम इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं बैक्टीरियोफाज का. Hexagonal shape head, then neck, and then foot. That is the tail. It
it has got the receptors which easily attach or adhere with the surface of the bacterial cell wall or the capsule of the bacteria. अच्छा, this one is the tough protein coat, येलो कलर का जो मैंने बनाया है, और इसके अंदर जो है आरएनए और डीएनए सस्पेंड हुआ होता है, and there is a defined tail like structure, and it's also made up of protein. Okay. So bacteriophage is nothing but a composition of a protein coat and the DNA. So it has three parts: head, tail and foot. और बहुत सी बुक्स के अंदर आपको ये जो है नेक लिखी हुई नजर आएगी, और ये जो लास्ट वाला है ये फुट लिखा हुआ नजर आएगा, नेक एंड नेक और टेल, सॉरी टेल, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली बैक्टीरिया के मुकाबले में बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, और आउटसाइड द लिविंग प्रोटोप्लाज्म और लिविंग बॉडी दे एक्ट एज अ नॉर्मल non-living particles. When they interact with the bacteria, what will happen? Let's see how they multiply. Okay. This is the normal bacterial cell. Every bacteria is not easily infected by these bacteriophages. हर बैक्टीरिया जो होता है ना उसके ऊपर ये इन्फेक्शन भी नहीं करते, इन्फेक्ट भी नहीं करते, सिर्फ वही वाले बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करते हैं जिनकी सेल वॉल जो होती है उसके ऊपर इसकी टेल को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स मौजूद है. Suppose this bacteria has got the receptors that is actually fixed on the tail of that bacteriophage. तो जनरल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन बना दी है मैंने, तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे ऐसे डिफाइन करके बना दी, ठीक, ये सेल मेम्ब्रेन बना दी है. ओके, अब इसके ऊपर ये बैक्टीरियोफाज जो है ये आके अटैच होगा, जैसे ये यहाँ पे ये रिसेप्टर्स जो थे वो इसके साथ टेल के साथ अटैच कर दिए, ठीक है. ये यहाँ पे अटैच हो गया, सही. अब जैसे ही अटैच होगा तो ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को जो है डिसॉल्व करवा देगा, और डिसॉल्व करवाने के बाद अपना जो डीएनए है वो इसके अंदर इंसर्ट कर देगा, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में वो दैट मींस वो डिसॉल्व हो चुका होगा, और ये खुद जो होगा इसका प्रोटीन कोड जो है वो गिर जाएगा, ठीक है. ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये ऑरेंज से मैंने इसकी ये सेल मेम्ब्रेन बना दी है, ठीक है. बैक्टीरिया, अभी बैक्टीरिया जो है वो हेल्दी कंडीशन में, और इसको ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है कि अंदर कोई चीज मेरे एंटर हुई है. और जनाब इसका प्लाज्म है. अच्छा, अब ये जो है बैक्टीरियोफाज जो है ये तो ऐसे करके मतलब ये हट जाएगा, डिस्ट्रॉयड फॉर्म में होगा, और इसका जो ये डीएनए होगा ये अंदर आ गया, ओके. अब जैसे ये डीएनए अंदर आएगा तो जो बैक्टीरियल डीएनए है, दिस वन इज द डीएनए बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डीएनए, ओके. ये जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ओके. अच्छा, ये साइटोप्लाज्म है. अच्छा, और ये जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये जो है ये बैक्टीरियोफाज है, ठीक है. अच्छा, अब ये जो है ये बैक्टीरियल डीएनए, ये बैक्टीरियोफाज डीएनए है,
और वायरस डीएनए है। और ये जो है बैक्टीरियल सेल ओरिजिनल डीएनए। आगे चलते। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि जो ये बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए ये है। प्रोटीन कोड क्या होता है? जी बेटा, मिस प्रोटीन कोड समझाते हैं। protein code is nothing but proteinaceous structure that makes the defined particulate structure of the virus। ठीक है, मतलब वायरस का जो एक पार्टिकल का जो शेप होता है, चाहे वो हेक्सागोनल हो, चाहे वो राउंड शेप का हो, या जिसे कहा जाए कि किसी और स्पाइकी स्ट्रक्चर हो, वो बेसिकली प्रोटीन का जो प्रोटीन की जो कंपोजिशन होती है वो एक्चुअली डिजाइन करती है, वो उसे बना देती है। एक स्ट्रक्चर होता है, एक बॉडी स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए प्रोटीन यूज होता है, दैट्स कॉल्ड द प्रोटीन कोड। और एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डीएनए मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड एवरी व्हाट कैन आई से वायरल पार्टिकल। ठीक है। अच्छा, अब ये होगा कि ये जो वायरस का जो डीएनए है वो जो है डायरेक्शन दे चुका है किसको, जिसे कहा जाए कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको डायरेक्शन इसकी तरफ से मिलनी शुरू हो गई है, और बैक्टीरिया ने अपने सारे काम छोड़कर जो है इसका जो है प्रोटीन कोड अपने साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस करना शुरू कर दिया है। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस तो इसके पास मौजूद की फैक्ट्री तो इसके पास मौजूद है। कैसे? क्योंकि बैक्टीरिया के पास अपने इटसेल्फ क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के पास अपने क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो राइबोसोम्स की हेल्प से जो है दे कैन इजीली स्टार्ट सिंथेसाइजिंग देयर बॉडीज। ठीक है, राइबोसोम्स, और ये किसके हैं, बैक्टीरिया के राइबोसोम्स। दे कैन बी एबल टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। तो प्रोटीन कोड जो है वो वायरस का जो है वो बनना शुरू हो गया है। एक्चुअली जो इसने अपना डीएनए इंसर्ट किया था वायरस ने, उसने मैसेज इसके डीएनए को भेजा कि भाई तुम अपने सारे काम रोक दो और मेरा जो है वो प्रोटीन कोड बनाना शुरू करो। And the DNA gives the information to the ribosomes, free ribosomes. Bacterial DNA gives the information to the free ribosomes of the bacterial cell that starts making protein for that particular DNA virus. ठीक है। अच्छा, now after a certain time period, what happens? The assembly takes place. So many protein codes are present inside it, inside the bacterial cell. Now bacterial cell metabolically less function for itself benefits, but highly functional for the वायरल बॉडी स्ट्रक्चर मेकिंग और प्रोटीन की मेकिंग में, और उसके डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसमें भी नॉट ओनली प्रोटीन कोड बन रहा होता है इस राइबोसोम से, बल्कि इसके अपने जो डीएनए के पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी तादाद जो होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से ये बहुत सारे पार्टिकल्स तुम लोगों को बना के दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ कोने में एक छोटा सा बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो इधर साइड में कर देते हैं। द होल सेल इज फिल्ड विद द प्रोटीन कोड। ठीक है, और ये बनने शुरू हो गए हैं बेनतहा, बहुत सारे करोड़ों की तादाद में बनते हैं। और साथ ही साथ इसमें रेप्लिकेशन जो होती है इसके बहुत सारे डीएनए की भी जो होती है वायरस की वो शुरू हो जाती है। और ये सारी चीजें किसके थ्रू हो रही हैं, ये सारी चीजें राइबोसोम्स के थ्रू हो रही है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो बैक्टीरियल डीएनए ने इसको दी हुई है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द बैक्टीरियोफाज और virus DNA which is inserted in the first or the second step of this process. After a certain time period, what will happen? When all the replication is completed and all the structures are completed, now the assembly takes place. In the next step, what will happen? The assembly of the viral particles takes place inside the bacteria. At that time, bacterial cell metabolic activities almost completely zero. सिर्फ और सिर्फ कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही होती है, सिर्फ नए वायरसेस बन रहे होते हैं, उन्हीं का काम सारा किया जा रहा होता है। और इस तरह करके, ठीक है, ये पूरे पूरे वायरसेस बन गए हैं, अब इनकी असेंबली हो गई है, इनके अंदर जो है डीएनए जो है वो इंसर्ट किया जा चुका है। ये देखो पिंक कलर का मैंने पार्टिकल हर किसी के अंदर आ गए, और ये बहुत सारी जैसे कहते हैं ज्यादा तादाद के अंदर होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इट गेट बर्स्ट।
सेल जो होगा वो चूंकि कम्प्लीटली अब डेड हो चुका है और मेटाबॉलिकली जीरो एक्टिविटी शो कर रहा है अपनी लाइफ के लिए, सो दैट सेल स्टार्ट्स बर्स्टिंग। ठीक है, ये जो सेल होगा ये बर्स्ट होना शुरू हो जाएगा। कैसे? बर्स्ट हो जाएगा। और इसके बर्स्ट होते के साथ ही बहुत सारे so many new viral particles of same nature and composition comes out. Okay, new bacteriophages. Okay, और हर किसी के अंदर जो है वही वाला डीएनए का कंपोनेंट मौजूद होगा। नाउ दे आर फाइंडिंग another bacteria which has got the same receptors as that of them, ठीक है, जो उनके ऊपर एडजस्ट हो जाए और फिर उसके बाद फिर उस अगले बैक्टीरियल सेल को ये इन्फेक्ट करेंगे और अपनी जिसे कहते हैं रेप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड आफ्टर रप्चरिंग द बैक्टीरियल सेल दे कम्स आउट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ये चल रही होती है by injuring the different bacterial cells and increasing their population size. Okay, so their mode of reproduction is very much unique, not the binary fission, not asexual, not sexual. ठीक है, इनकी वायरसेस की जो जैसे कहते हैं ना कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो भी बहुत डिफरेंट है। दैट मींस कि द फर्स्ट डिस्ट्रॉय द सेल एंड देन कम्स आउट, और जब वो खुद इटसेल्फ प्रोटोप्लाज्मिक या लिविंग कंटेंट से बाहर आते हैं तो फिर वो ना तो मल्टीप्लाई करने के लायक होते हैं और ना ही किसी और चीज में इन्वॉल्व होने के लायक होते हैं। मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर पैथोजेनिक इन नेचर। ठीक है, viruses are mostly pathogenic in nature and causes disease in both मॉक कब होगा? both plant and animals। अच्छा तुम लोग बता दो, मैं ले लेती हूँ। जब बोलोगे आई एम रेडी।